Students, at the time of admission of a partner, if some reserves or profits P&L credit balance is given on the liability side of the balance sheet, then what will be the treatment of these reserves profits? I mean undistributed profits. So chapter is admission of a partner and topic is distribution of reserves and profits. There are some reserves and profits beta. First of all, I would like to write down the name of the reserves like general reserve, like reserve for contingency, like workman compensation reserve, and sometime it is mentioned as fund also, same thing. Investment fluctuation reserve or fund. See, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में P&L है तो उसे क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं. दैट रिप्रेजेंट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. और अगर P&L बैलेंस शीट की एसेट साइड है तो वो लॉस होता है. हम ले रहे हैं क्रेडिट बैलेंस को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, this is credit balance. So these are some examples of what? Reserves and funds. General reserve, reserve for contingency, workman compensation fund, investment fluctuation fund, and profit and loss account. All these reserves and funds are undistributed profits, students. Simple method is there because these are earned and accumulated by old partners in the existing firm. Existing firm में old partners ने इन profits को earn किया है, accumulate इकट्ठा किया है, तो इन पर हक किसका है? Old partners का. So all these reserves and funds are distributed among old partners in old profit sharing ratio. यानी इन सभी प्रॉफिट्स को हम जनरल एंट्री पास करके एक तरह से ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर देंगे. प्रॉफिट्स रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में. हम इसको एक एंट्री में भी पास करके दिखा सकते हैं, बट ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए तो इन सभी की मैं सेपरेट एंट्री करके दिखाता हूं आपको. फर्स्टली, व्हाट विल बी द एंट्री फॉर जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस credit balance, because these are undistributed profits. General reserve, profit and loss account. इनकी जनरल एंट्री क्या होगी पहले वो डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट यू मस्ट नो स्टूडेंट्स, these reserves, profits are undistributed profits, so they have a credit balance. यानी जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी ये क्रेडिट है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. जब इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली ये डेबिट हो जाएंगे बिकॉज दीज हैव क्रेडिट बैलेंस. तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? देखिए, जनरल रिजर्व अकाउंट debit, this is the journal entry. Profit and loss account debit. to कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है? among old partners, to old partners capital accounts. और अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगा. So this is the distribution of
distribution of profits in old profit sharing ratio। इनमें से कोई एक गिवन है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व की एंट्री हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री हो जाएगी। बोथ आर गिवन तो दोनों की एंट्री हो जाएगी। अब हम जनरल एंट्री करेंगे रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी, जिसको मैंने लिखा था अभी, उसकी भी एंट्री सेम पैटर्न पे होगी बेटा। सी रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी, सेम पैटर्न। दिस इज ऑल्सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा। जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स में तो ये डेबिट हो जाएगा। तो जनरल एंट्री के लिए रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल accounts, and this is also in old profit sharing ratio. So this is distribution of reserve for contingency. Next one is, what will be the journal entry for workmen compensation fund or reserve? Workmen compensation reserve or fund. So this is also accumulated profit, but pay attention, this reserve is created out of profits to compensate the workers if any injury, any accident take place and they are affected from that इंजरी और एक्सीडेंट। यानी ये रिजर्व हम सिर्फ वर्कर्स को कॉम्पनसेशन देने के लिए बनाते हैं। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हमें ये देखना है कि इस रिजर्व में से कोई लाइबिलिटी तो पे नहीं करनी, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं बेटा, ये डेबिट तो होना ही है। देखिए डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, लेकिन कितने अमाउंट से डेबिट होना है देखिए, इसको हम मेंशन कर देते हैं यहां, excess of reserve over liability। यानी इस रिजर्व के अगेंस्ट अगर कोई क्लेम फॉर वर्कर्स कॉम्पनसेशन है तो इस रिजर्व में से वो माइनस करेंगे। इस बच्चे समझे इस बात को। मान लो रिजर्व हमारा 1 लाख रुपीज है और जिस दिन पार्टनर का एडमिशन हो रहा है 30,000 की लाइबिलिटी पे करनी है वर्कर्स को। 1 लाख का रिजर्व है, 30,000 की लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो रिजर्व 70,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में। यानी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का सुन लीजिए बेटा केसेस, अगर इसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं है तो पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर इस रिजर्व में से कोई लाइबिलिटी पे करनी है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी होगी हमें क्वेश्चन में। इस रिजर्व में से अगर कोई लाइबिलिटी पे करनी है तो रिजर्व माइनस लाइबिलिटी, बाकी जो अमाउंट बचेगा उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। तो ये था बेटा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। दोबारा सुन लें, इस रिजर्व में से कोई लाइबिलिटी पे नहीं करनी तो पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर थोड़ी बहुत लाइबिलिटी पे करनी है तो रिजर्व माइनस लाइबिलिटी का अमाउंट और बाकी पैसा हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। The term is investment fluctuation fund or reserve।
See the meaning of this fund or reserve. This fund or reserve is created out of profits, यानी profits में से हम इसे बनाते हैं, to write off the loss, cover off the loss which arise due to fluctuation in the value of investment. यानी बिजनेस का पैसा अगर हमने दूसरी कंपनीज के शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप जानते हैं सेंसेक्स अप डाउन होता है, शेयर और डिबेंचर प्राइस अप डाउन होती हैं। डाउन होने की वजह से अगर कोई लॉस हो तो उस लॉस को हम कहां से रिकवर करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। यानी ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, और हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ओल्ड फर्म ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रखा है, यानी ये प्रॉफिट बना रखे हैं, प्रॉफिट रिजर्व रखा है इस नाम से। तो हमें क्या करना है, अगर तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अगेंस्ट कोई लॉस नहीं है, जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट के नीचे दी हुई हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेंशन्ड नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हुई है, यानी देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये सारा का सारा फंड क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो। मैंने क्या बताया बेटा, ध्यान से सुनना और बेशक नोट डाउन कर लो इसको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इन्वेस्टमेंट का किसी तरह का लॉस राइट ऑफ नहीं करना, लॉस है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज नहीं हुआ, तो हम सारा का सारा फंड का पैसा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऑन द डेट ऑफ एडमिशन देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में थोड़ा डिक्रीज है, डाउन हो गई है। इसका मतलब इस फंड का इस्तेमाल, यूज, पहले हम जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है उसे राइट ऑफ करने में करेंगे, और बाकी जो बचेगा उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसलिए यहां लिख देता हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा, वी मेंशन इट, एक्सेस ऑफ रिजर्व और फंड, एक्सेस ऑफ फंड ओवर लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको ध्यान से देखें बेटा, मान लो हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 50,000 है, हाउ मच, 50,000, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 कम हो गई, तो 50 में से 10,000 तो यूज हो जाएंगे लॉस को कवर करने में, राइट ऑफ करने में, और बाकी जो 40,000 हैं वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब समझ लें इसको, केस नंबर 2 हो गया एक तरह से ये, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, और ये कितने से डेबिट होगा, इस फंड में से अगर इन्वेस्टमेंट पे कोई लॉस हो गया है तो वो माइनस करने के बाद जितना भी अमाउंट बचा है उसे हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, यानी इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो ये था बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स फंड्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड को मैंने और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है बहुत सारे केसेस लेकर, और ये मिलेगा आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप यूट्यूब चैनल मेरा जो है उसे सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देखें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उसमें मैंने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिफरेंट केसेस लेकर इसको डिस्कस किया हुआ है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम सारे रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिवाइज दिस ओवर एंड अगेन।